ওং নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়। স্বামী হরিহর তীর্থ স্মারক বক্তৃতায় উপস্থিত সম্মানীয় শ্রোতৃমণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক স্বাগত জানাই। আজকের বক্তা পূজনীয় স্বামী হরিব্রহ্মেন্দ্রানন্দ তীর্থ মহারাজজি, উত্তরকাশীর ব্রহ্মবিদ্যা পীঠমের প্রধান সঞ্চালক। উত্তরকাশী আপনারা জানেন হিমালয়ের মধ্যভাগে 5 মাইল ব্যাপী এক উপত্যকা। চারদিক ঘিরে রয়েছে হরি পর্বত, বালখিল্য পর্বত, বার্নাবর্ত পাহাড়, সবুজ জঙ্গল চারদিক। প্রশান্ত গম্ভীর উপত্যকায় বয়ে চলেছে পবিত্র ভাগীরথী গঙ্গা এবং যুগ যুগ ধরে উত্তরকাশী সাধক সন্ন্যাসীদের প্রিয় সাধন ক্ষেত্র। আজকের বক্তা স্বামী হরিব্রহ্মেন্দ্রানন্দজি মহারাজ বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রেরণায় ঘর ছেড়েছিলেন মাত্র 15 বৎসর বয়সে। একাকী নানা বাধা বিঘ্ন বিপত্তি কাটিয়ে চলে আসেন উত্তরকাশীতে এবং গভীর তপস্যাপুত জীবন তার, সাধনা কঠোর ছিল তার। বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা সাধকদের প্রেরণা স্বরূপ, সাধু ব্রহ্মচারীদের আদর্শ। আমরা তাকে, আজকের বিশিষ্ট বক্তাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ, প্রণাম ও স্বাগত জানাই। এখন আমরা ইনস্টিটিউটের রীতি অনুসারে যার নামে স্মারক বক্তৃতা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করি। পণ্ডিত হরিহর তীর্থ স্মারক বক্তৃতা। রাজস্থানের উদয়পুরে এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বামী হরিহর তীর্থ মহারাজের জন্ম। তার পিতা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও রাজবংশের পুরোহিত ছিলেন। সুসম্পন্ন পরিবারের সন্তান তিনি প্রথম থেকেই জাগতিক বিষয়ে উদাসীন ও বৈরাগ্যবান ছিলেন। প্রথাগত পঠন পাঠনের পর তিনি কাশীতে স্বামী পরমানন্দ তীর্থর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও পরবর্তীকালে তাঁর কাছ থেকেই সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে উপস্থিত হন ঋষিকেশের কৈলাস আশ্রমে। সেখানে বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ গিরিজির সান্নিধ্যে থেকে আরও গভীর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে স্বামী হরিহর তীর্থজি নিয়মিত শাস্ত্রানুরাগী গৃহী ও সন্ন্যাসীদের শাস্ত্র কথা শোনাতেন। তাকে একাধিকবার কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বরের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়, কিন্তু তিনি প্রতিবারই সবিনয়ে পদ গ্রহণে অসম্মত হন। এরপর তাঁর প্রশান্ত মূর্তি ভক্ত হৃদয়ে সমুজ্জ্বল ছিল। স্বামী হরিহর তীর্থ মহারাজের স্মরণে বাৎসরিক বক্তৃতামালার আয়োজনে উদ্যোগ নিয়েছেন মেদিনীপুর মায়াপুরের হরিহর আশ্রমের ভিক্ষু নিঃশ্রেয়সানন্দ পুরী মহারাজ। প্রসঙ্গত নিঃশ্রেয়সানন্দজির পিতা মাতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আজ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে হরিহর তীর্থ মহারাজ স্মারক বক্তৃতা দেবেন স্বামী হরিব্রহ্মেন্দ্রানন্দজি মহারাজ। স্বামী হরিব্রহ্মেন্দ্রানন্দজি মহারাজ সংস্কৃত, মালয়ালম, হিন্দি ও ইংরেজিতে নিয়মিত ক্লাস নেন। এ মোস্ট sought after স্পিকার এবং আক্ষরিক অর্থেই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আমন্ত্রিত হন প্রস্থানত্রয়, বেদ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, প্রকরণ গ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়ে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ক্লাস নেন নিয়মিতই, বক্তৃতাও দেন। আগামীকাল যেমন তার একটা বক্তৃতা আছে বেলুর মঠের বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটিতে। 9 তারিখে একটা সারাদিন ব্যাপী রিট্রিট আছে দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠে। তারপর 9 তারিখে তিনি আবার
উত্তরকাশীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। আজ তার বক্তৃতার বিষয় ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই বেদান্ত তত্ত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা কী এবং এর অপব্যাখ্যার ফলে আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিভাবে, এবং বর্তমানে আমাদের জীবনে এই তত্ত্বের অনুশীলন কিভাবে সম্ভব ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আশা করি पूजनीय महाराज আমাদের সামনে उपस्थापन করবেন। पूजनीय महाराज के आप स्वामी जी हिंदी में आपको बोलना है और करीब 50 मिनट। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। एरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ 2 साल पहले बार आए थे। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसके निमित्त आए और इसी प्रकार सायंकाल हमने सनातन धर्म विषय पर कुछ विचार किए थे। उसी प्रकार इस समय भी आना हुआ। तो यहाँ हम आज बहुत ही एक विशेष विषय पर विचार कर रहे हैं और निमित्त इसी प्रकार ही रहा। परम पूज्य परमाराध्य हमारे गुरुस्थानीय परम गुरुस्थानीय हरिहर तीर्थ जी के नाम से ये जो व्याख्यान माला है, इसमें आज भाग लेने का अवसर मिला। हमारे आचार्य श्री हैं पूज्य विष्णु तीर्थ जी महाराज। वे ऋषिकेशस्थ कैलाशाश्रम में आचार्य थे और उनकी दीक्षा जो मंत्र देते हैं संन्यास के समय पे, वो भी हरिहर तीर्थ जी महाराज जी से हुआ है। तो हमने कई सालों तक उनसे अध्ययन किया और वर्तमान में वे आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ उत्तरकाशी, जहाँ वे निवास करते हैं, हम भी वहीं निवास करते हैं और आज कल भी वहाँ अध्ययन चलता रहता है। तो उनके माध्यम से पूज्य हरिहर तीर्थ जी हमारे परम आचार्य बनते हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है और ठाकुर जी की कृपा एवं माँ की कृपा हम इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हो सके। और आज का जो विषय है, ये तो प्राय सभी लोग इस विषय को सुने हैं, जानते हैं। ये वेदांत का ऐसा एक मूलभूत
धारणा है जिस पर अनेक व्याख्याएं हुई, या वेदांत को, अद्वैत वेदांत को जब कहा जाता है, विशेष करके भगवत्पाद शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार अद्वैत वेदांत की जब व्याख्या होती है, उसको पढ़ाया जाता है, तो जैसे योग सूत्र की बात करते हैं तो योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, ऐसे उद्धरण दे के सभी लोग उस पर व्याख्यान देते हैं। इसी प्रकार जब वेदांत को लेते हैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये वाक्य लिया जाता है। ये वाक्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी के वैसे तो मुख्य ग्रंथों में नहीं है, ये वाक्य प्रकरण ग्रंथों में आता है। एक आंशिक रूप से वेदांत डिंडिमा नाम के प्रकरण ग्रंथ है, उसमें ये वाक्य आता है, और आंशिक रूप से विवेक चूड़ामणि में भी आता है। बाकी उनके प्रस्थानत्रय भाष्य में ये वाक्य उपलब्ध नहीं है, ऐसा सीधा इस प्रकार के वाक्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात तो है, इस पर विषय पर ही चर्चा है। तो आज हम इसको बहुत ही विधिवत व्यवस्थित रूप से भगवत्पाद शंकराचार्य जी के दर्शन के अनुसार, अद्वैत दर्शन के अनुसार, आप लोग सब अद्वैत दर्शन के अभिज्ञ होंगे और सभी संत लोग उपस्थित हैं, सभी महानुभाव जो भी आप इस पर सुने होंगे, उसका भाष्य के अनुसार आचार्य जी सत्य के अर्थ क्या करते हैं और मिथ्या के अर्थ क्या करते हैं, इस पर हम विधिवत विचार करेंगे। तो प्रारंभिक रूप में थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, क्योंकि वो टेक्निकल बोलने के बाद ही फिर हम आपको उदाहरण सहित सरलता से समझाएंगे। अंत में यदि कोई प्रश्न होगा तो जैसा समय उपयुक्त रहेगा उसी के अनुसार प्रश्न भी लेंगे। इसके साथ एक शब्द और हमारे ध्यान में आता है, वो शब्द है माया। एक तो ब्रह्म शब्द, दूसरा माया शब्द, और वेदांत के विषय में ये ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ये शब्द। जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये ठीक है कि जीव, जिसको जीव कहा जा रहा है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ये भगवत गीता में सर्वत्र प्रसिद्ध है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, और तत्त्वमसि आदि महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य है, ये सब उस पर ही है। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वेदांत एक वास्तविक तत्वज्ञान अर्थात रियलिस्टिक फिलॉसफी है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिलॉसफी जब हम कहते समय, तत्वशास्त्र, तत्वज्ञान, तत्व विचार की जब बात करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टिज्म भी आता है, कुछ काल्पनिकताएं भी आती है। किंतु वेदांत जो शुद्ध वेदांत है उसमें काल्पनिकता का कोई स्थान नहीं है, यानी वो बिल्कुल ही मिस्टिज्म नहीं है, मिस्टिक फिलॉसफी, मिस्टिक थॉट्स नहीं है, रियलिस्टिक थॉट्स अर्थात यथार्थ है। जो जैसा है वैसा उसको बताना है और ऐसा ज्ञान आपको दिलाना है। इसलिए कई बार हमें आश्चर्य होता है कि वेदांत जो समझाता है, कहता है, वो वक्तव्य हमें पूरा समझ में नहीं आवे, क्योंकि हमारा जो मन जिस स्तर पर सोचता है, समझता है, वेदांत शायद उस स्तर से बहुत
आगे जाकर के और गहराई से, गंभीरता से आंतरिक अर्थ को समझाता है। इसी कारण वेदांत को सामान्य दृष्टि से, सामान्य जनों की बुद्धि से बाहर का माना जाता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वेदांत जैसा सरल कोई दर्शन नहीं है। वेदांत जैसा सरल सहज कोई अनुभव नहीं है। वेदांत जैसा व्यापक, सभी को साथ में लेने वाला कोई दर्शन ही नहीं है। ऑल इंक्लूसिव कोई और दर्शन है ही नहीं। किंतु समस्या क्या होती है, कभी कभी जो अत्यंत सरल होता है, वो निकटतम अत्यंत सरल होता है, वो भी हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो पाते हैं। हमारे बुद्धि में वो आएगी नहीं। जो अत्यंत सरल होता है, जैसे हमारे निकटतम है, जैसे आंखों के जो पलक हैं, आंखों के बाहर जो छोटे से रोम हैं, बाल हैं, वो सब हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो दृष्टि के अत्यंत निकट है। वो दृष्टि के लिए निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है। यानी दृष्टि उसको विषय बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, तब जाकर के उसका ज्ञान हमें हो पाएगा। जब वो ऑब्जेक्ट बना नहीं पाती है दृष्टि, तब आप उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और कई कारण होते हैं, जैसे वायु है। वायु भी सर्वत्र व्यापक है। वायु के बिना एक पल भी हमारा जीवन संभावित ही नहीं है। किंतु वायु को हम देख नहीं सकते। वायु प्रकारांतर से अनुभव में है। हम जब अध्ययन करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज में, ये अध्ययन करने के बाद में हमें पक्का ज्ञात है कि वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन नहीं है, आदि आदि सब स्पष्ट है हमारे मन में। किंतु हम कितने बार प्रतिदिन वायु के बारे में सोचते हैं? वायु के बारे में हमारे मन में विचार कितने बार बनता है? थॉट प्रोसेस कितने बार बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो अत्यंत सरल है। आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सुबह उठना ही वायु से होता है, रात को सोना भी वायु से होता है। आप जागृत अवस्था में वायु में से ही अपने जीवन चला रहे हैं, स्वप्न में वही चला रहे हैं। आप किसी भी अवस्था में हैं, वायु की सहायता के बिना आपका पल भर का भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन वायु को ध्यान नहीं करते हैं। वायु हमारे लिए एक प्रकार से सहज में उपलब्ध है, प्रचुर में उपलब्ध है। कहीं भी, कहीं जाकर के, कहीं कमरे में कहीं हम प्रवेश करते समय सफोकेशन होता है तो हमें लगता है कि यहाँ हवा कम है। जैसा एसी नहीं है, कमरा बंद है, तो हम प्रवेश करते समय कुछ सफोकेशन फीलिंग होता है। तो उस समय को छोड़ करके बाकी समय वायु का चिंतन नहीं करते। अब देखिए, ये स्थिति है। वायु आपके साथ है, वायु हमेशा आपको उपलब्ध है, और वायु को अलग से जानने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। यदि जान भी लेते हैं, नहीं भी जान लेते हैं, तो भी वायु आपको प्राप्त ही है। वायु ये नहीं कहता है कि यदि देखो मुझे नमस्कार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सप्लाई नहीं दूंगा। ऐसा वायु नहीं कहता है। यदि ऐसा कहता होता, जैसे बिजली की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है, ऐसे यदि वायु की भी सप्लाई ऐसी व्यवस्थित होती तो आप जरूर उसको याद करते, सुबह उठते ही उसको ध्यान करते। ये नहीं करते। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर तत्व जो है ना, इसकी एक कमी यह है कि यह सर्वत्र समवस्थित है। भगवत गीता में भगवान ने कहा सर्वत्र समवस्थित है, सम रूप से अवस्थित है, स्थित है। समोहम सर्वभूतेषु। अब ऐसे भाव में सर्वत्र समवस्थित व्याप्त रहने से और बिना प्रयत्न से आपको निरंतर प्राप्त होते रहने से आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और आप को कोई पूछेंगे कि आप किससे जी रहे हैं,
अब आपको सामान्य रूप से कोई पूछेंगे किससे जी रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं हम भोजन करते हैं इसलिए जी रहे हैं, पानी पीते हैं इसलिए जी रहे हैं, हम पैसा कमाते हैं इसलिए जी रहे हैं, हमारे पास घर है गाड़ी है इसलिए जी रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि वायु के कारण जी रहे हैं। कभी आप कहा होगा? नहीं कहा होगा, हमने कभी नहीं कहा, न बचपन में कोई पूछा न कहा। सत्य क्या है कि बाकी सब ना होने पर भी, ये नहीं होने पर आपका जीवन नहीं होता, उसी पर ही आप जी रहे हैं। तो सबसे पहले उसको याद करना चाहिए था। हमारी बुद्धि जो है, धन आदि संपत्ति आदि जो भी जो है उसके सुविधा उसी पर है। वो सब तभी काम आता है जब वायु आपके साथ दो। ऐसा ही सत्य है, यही सत्य है। अब इस बात को हम यदि उजागर करें कि प्रतिदिन आपको किसी को नमस्कार करने के पहले सबसे पहले नमस्कार स्मरण, प्रातः स्मरण वायु देवता का करना चाहिए, ऑक्सीजन का करना चाहिए, ये कहेंगे तो सत्य नहीं है क्या? ये बिल्कुल सत्य है, ये यथार्थ है, करना तो वही चाहिए। किंतु उसके लिए कोई कर्तव्य हमें दिखता नहीं, ये हमें करना चाहिए ऐसा हमको लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है? कारण यह है कि वो प्लेंटी अवेलेबल है, बिना प्रयत्न अवेलेबल है। इसलिए मैंने कहा जो अत्यंत सरल होता है, अत्यंत सहज भाव में उपलब्ध होता है और प्रचुर मात्रा में पूर्णतः उपलब्ध होता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां कभी कभी अभाव हो और उसमें कोई तुलनात्मक दृष्टि से एर फेर हो, यानी कम ज्यादा हो, कंपैरिजन हो, तब हमारा ध्यान में वो आता है, अन्यथा नहीं आता। इसलिए जो सत्य होता है वो यथार्थ है। सत्य की अलग परिभाषा यथार्थ है। यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है? यथा अर्थः, यानी अर्थम अनधिक्रम्य यथार्थम, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है। यानी जो वस्तु जैसी है, जैसे ये वस्त्र है तो इसको हम वस्त्र कहना है, तो वस्त्र को वस्त्र रूप से जानना, यह हम उसका यथार्थ बोलेंगे। माने वस्त्र को वस्त्र रूप से जाना, इसलिए वस्त्र यथार्थ है। जैसी वस्तु जैसी स्थिति, उसको वैसे के वैसे यदि जाना जाए उसको यथार्थ कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं। उसमें बाहर से कुछ ला करके जोड़ना नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना। जैसे ये वस्त्र को देख के आप कह सकते ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये तो स्वामी जी का वस्त्र है, ये गेरू रंग का वस्त्र है, ये साधुओं का वस्त्र है, आदि आदि सब आप उसमें कहानी जोड़ सकते हैं। ये सब हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं। ये सारे जो हैं तात्कालिक समय के कारण, उस समय के प्रभाव में या अवस्था के प्रभाव में हमारी जानकारियां इसमें जुड़ जाती है। वस्तुतः ये क्या है? न ये मेरा है, न ये आपका है, न वो किसी का है, ये वस्त्र आसिटिस वस्त्र है, इसलिए उसको यथार्थ बोलते हैं। अर्थम अनधिक्रम्य यथार्थ। अब उसका वस्त्र का कोई नाम भी दिया जा सकता है। यदि उसमें कोई कलर है तो कलर आप बोल सकते हैं। तो वो सब जोड़ते जाता है, नाम जोड़ते हैं, उसका क्वालिटी जोड़ते हैं और बाकी संबंध जोड़ते हैं, आदि आदि जोड़ेंगे तो ये एक कहानी बन जाएगी। फिर वो जगत रूप में, संसार रूप में प्रकट हो जाएगा। अब सत्य से, यथार्थ से, आप यथार्थ के साथ आपने कुछ कुछ जोड़ा, तब वो यथार्थ कुछ विकृत सा हो जाता है और फिर हम उसको जगत रूप में कहते हैं। तो ये सत्य से संबंधित है। सत्य का दूसरा नाम है तथ्य। सत्य है, तथ्य है, रिदम है, ये शब्द संस्कृत में प्रयोग करते हैं। जैसे अनृत शब्द बनाते हैं, वो रितम के साथ जोड़ करके बनाते हैं। न रितम अनृतम। अनृतम माने झूठ, फॉल्स। वही अर्थ मिथ्या का भी होता है। तो जो झूठ है वो मिथ्या है, फॉल्स है वो मिथ्या है, और जो
सत्य है, यथार्थ है, वो यथार्थ है। अब हमारे पास दो ही रह जाता है, एक सत्य, दूसरा मिथ्या। अब वो वाक्य कहता है ब्रह्म सत्यम, को बोलते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं, और जगत मिथ्या। तो जगत as it is, जो भी आप दिखाई पड़ रहे हैं जगत रूप में, जिसको आप जगत समझ रहे हैं, हम समझेंगे कि जगत क्या है, आप समझ रहे हैं, उसको मिथ्या बोलना है। अब इसकी व्याख्या में क्या हुआ कि ब्रह्म सत्यम, सत्य शब्द ठीक है, सत्य मन रियल है, रियलिटी है, ट्रूथ है, और as it is है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मिथ्या शब्द जब कहते समय, क्योंकि ये मिथ्या शब्द का अर्थ लोग व्यवहार में सामान्य प्रयोग में कुछ और अर्थ में होता है, तो मिथ्या शब्द प्रयोग करते समय बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मिथ्या शब्द प्रयोग करते समय जगन मिथ्या जब बोलेंगे तो पहले हम समझते जगत है ही नहीं, जगत का अभाव, लेकिन यह गलत है। मिथ्या शब्द का अर्थ अद्वैत में, वेदांत दर्शन में अभाव नहीं है, एब्सेंस ऑफ क्रिएशन ऐसा नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग को वो नहीं बोल रहे। मिथ्या शब्द का अर्थ वो नहीं है, एक तो ये समझिए। अब वो क्या है उसकी व्याख्या हम करेंगे। और दूसरा, मिथ्या शब्द का अर्थ के साथ ही हम कहते हैं कि जगत नहीं है, और फिर है तो वो माया है। माया को जगलरी, इल्यूशरी ये सब बोलते हैं। तो इल्यूशन को आप मिथ्या समझते हैं, माया समझते हैं, जो बिल्कुल है ही नहीं, आप उसको मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि एक तो मिथ्या शब्द का अर्थ अभाव नहीं है और इल्यूशन नहीं है, इस अर्थ में प्रयोग नहीं किया, इसलिए टेक्निकल ऐसा मैंने बोला, एक सांकेतिक है यह शब्द। अब कैसे इसको समझेंगे, पहले हम सत्य को समझें, क्योंकि सत्य को समझने पर बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम सत्य से शुरू करते हैं। सत्य की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से भाष्यकार ने की है कि सत्य क्या होना चाहिए। सत्य को एक वस्तु को दिखा करके, जैसे हमने ये कहा ये सत्य है, ठीक है, ये जो सत्य कहते समय आपको आपके मन में क्या क्या आया, मैंने भी शब्द प्रयोग किया, ये वस्त्र है ऐसा प्रयोग किया, अब वस्त्र शब्द आपके मन में आ गया, फिर आप अपने ढंग से इस वस्त्र को अलग अलग प्रकार से भी समझते हैं। तब क्या हुआ कि यहाँ समस्या क्या हो गई कि मैंने वस्त्र शब्द प्रयोग किया, आपको वस्त्र रूप से ये दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने तरीके से अपने तरफ से कुछ शब्दों को भी इधर जोड़ के समझ रहे हैं। तो असली में ये वस्त्र है क्या, ये वस्त्र ही रहने वाला है क्या, ये प्रश्न है। ऐसा नहीं है, ये आपको मालूम होगा। इसलिए सत्य का डेफिनेशन देते हैं कि यद्रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कहते हैं कि जिस रूप से, जिस प्रकार से जिस वस्तु को जाना, जानने के उपरांत, जानने के परे बाद में वो ज्ञान जब बदलता ही नहीं कभी भी, जो एक बार जाना वो ज्ञान कभी भी नहीं बदलता है, as it is रहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, तब वो वस्तु सत्य है। ऐसा है इसका डेफिनेशन। यद रूपेण, जिस रूप से, यद रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति, व्यभिचरति मतलब बदलता नहीं, तत् सत्यम। अब इसका विपरीत मिथ्या होगा, अनर्थ होगा। अब इंटरेस्टिंग देखिए, इसमें बहुत रोचक तत्व है। इसमें क्या है कि भगवत्पाद भाष्यकार वहां कोई एक शब्द में नहीं कह रहे हैं कि ये इसको ऐसा मानो,
उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया, साइंटिफिकली डिफाइन कर दिया। जैसे हमारे यहाँ फॉर्मूलास होते हैं और डेफिनेशंस होते हैं और एक एक का स्वरूप निश्चय होता है, इस प्रकार से कर दिया। सत्य को ऐसा मानो जिसमें ये लक्षण रहेगा वो सत्य रहेगा। ठीक है, यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम, उसी को सत्य कहना है। अब ये सत्य शब्द का जो अर्थ है, संस्कृत में जो सत्य शब्द बनता है सत से बनता है। सद एक शब्द है, सत शब्द बनता है अस धातु से, वो निष्ठा आदि प्रत्यय करेंगे तो सद होगा। सद होने के बाद में सदे हितम, तस्मै हितम ऐसा करके एक पाणिनि सूत्र है। तस्मै हितम माने सद के लिए जो अच्छा है, सद के लिए योग्य, सद के लिए जो ठीक है, उसको बोलते हैं सत्यम। उसमें जो त्य लगा हुआ है ना, यकार आदि आ गया, सद के बाद यकार आ गया, ये एक प्रत्यय है, वो उस प्रत्यय के अनुसार उसमें लगता है। तद्धित आदि में तस्मै हिदम ऐसा एक सूत्र है, तो उसके लिए अथवा तस्य हिदम भी होता है, उसके लिए हिद ऐसा करके उसको माना जाए। तो इसका अर्थ हो गया कि इसका जो सत्य का मूल क्या है, सत्य है। सत्य का मूल है सत्य। सत शब्द का अर्थ आप जानते हैं, सद मन यथार्थ और सद मन एक्सिस्टेंस, सत मन अस्तित्व, ये सब सत शब्द का अर्थ है। तो सत शब्द भी एक बड़े जो है व्यापक अर्थ रखने वाले हैं, यानी सत शब्द से आप पूरे सृष्टि को सबको ले सकते हैं। सत बोले तो एक्सिस्टेंस। हमारे यहाँ सत शब्द का अर्थ अच्छा ऐसा अर्थ में प्रयोग होता है कि सद्भावे साधुभावे च, भगवत गीता में जो कहा कि अच्छा कार्य के लिए सत का प्रयोग होता है। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में वेदांत की दृष्टि से सत कार्य का अर्थ होता है जो आपको सत से जोड़े। सत्संग ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, अभी हम सत्संग कर रहे हैं, तो सत के साथ संग, तो सत्संग को अच्छा कार्य माना जाता है। कारण क्या है, अच्छा का मतलब क्या, अच्छाई क्या है उसमें कि ये आपको आपके मूल के साथ जोड़ता है। आपका मूल है सद आत्मा, उस सद आत्मा के साथ जोड़ने वाला जो होगा उसको सत कहते हैं। और जो सदात्मा से बाहर ले जाता है, यानी सदात्मा को जानने में बाधा रूप से प्रवृत्त होता है, उसको असत कहते हैं। ये सद असत का अच्छा बुरा, ये अच्छा शब्द भी वैसे ही आया है। अच्छा शब्द संस्कृत में भी है, अच्छा माने स्पष्ट, स्वच्छ को जैसा स्वच्छ बोलते हैं उससे ही अच्छा शब्द आया हिंदी में। तो वो तो ठीक है, अभी व्याकरण दृष्टि से रहने दीजिए। लेकिन अब क्या कहा कि जो सत होगा, सत से संबंधित होगा, वो ले रहा है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा टेक्निकल हम यूज करना पड़ेगा यहाँ, ताकि आपके मन में ये सुदृढ़ हो जाए कि ये क्या बोलना चाहते हैं। अब देखिए, हम जिसको जिसको अच्छा समझते हैं वह आपके आत्मा के साथ, भगवान के साथ, अंतरात्मा के साथ जोड़ने वाला होना चाहिए, तब वो सत होता है। अच्छा वचन का अर्थ है कि वह वचन सुनने के बाद आपको अंदर से आनंद आया और आप अपने साथ आत्मा के साथ जुड़े और आपके साथ वो वचन हमेशा के लिए रहता है, यानी कंपैरेटिवली लॉन्ग टाइम रहता है। यह सत वचन है। इसलिए पंजाबी में गुरु वचन को, जब गुरु का वचन गुरुवाणी जब पाठ करते हैं तब सदवचन ऐसा कहते हैं। वो बैठे हुए जितने भी भक्त होंगे वो बीच बीच में कहते रहेंगे सतवचन, ऐसा प्रणाम करते हुए बोलेंगे। अर्थात ये वचन हमारे जीवन में अच्छाई लाएगा और इस वचन के अनुसंधान करने पर, ध्यान करने पर हमें आत्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे वचन को सद्वचन करते। इसलिए सत शब्द का जैसे सत्संग हो और ओम तत्सत में भी सत है, सब जगह है। ये बहुत बहुत विशिष्ट शब्द है तो ये 1.5 अक्षर का है, सकार और तकार आधा आधा है, तो इतने छोटे से हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सत शब्द का अर्थ है रियल, यथार्थ और एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस आप समझते हैं, अस्तित्व। अस्तित्व ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो यथार्थ है, वो कभी नहीं बदलता है।
आप वस्तु को बदल सकते हैं लेकिन अस्तित्व को नहीं बदल सकते, बीइंगनेस को नहीं बदल सकते हैं, एक्सिस्टेंस को कभी नहीं बदल सकते। यहां तक नॉन एक्सिस्टेंस में भी एक्सिस्टेंस है, यह भी हम बताएंगे। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि नासदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तनयोः तत्वदर्शी भी सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। छांदोग्य उपनिषद सत्य को लेकर के ही सारी व्याख्या करते। तो सत्य शब्द का अर्थ यह हुआ कि सद से एक्सिस्टेंस, द कोर एक्सिस्टेंस, एसेंशियल जो एक्सिस्टेंस है जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, वही आपका स्वरूप है। अब देखिए यहां कोई डेफिनेशन नहीं, यहां कोई व्याख्या नहीं कि वो एक्सिस्टेंस जो प्योर एक्सिस्टेंस है वो भगवान है, ये भी हमने कहते हैं। वो कोई नाम नहीं है उसका, कोई रूप नहीं है, कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है। आप शुद्ध अस्तित्व हो और आप शुद्ध अस्तित्व आपका स्वरूप है। यह हम आपको बाद में दिखाएंगे। आप वही हो, बाकी नहीं है, बाकी सब आपने जोड़ा है। ठीक है, तो यह हो गया सत्य, सत्य के साथ जुड़ने वाला सत्य हो गया। अब डेफिनेशन कहता है यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम, ऐसा कहता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। अब यह सत्य है कि असत्य है, ये जो वस्त्र में दिखा रहा हूं, देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ ठीक है। ये सत्य है असत्य है, सत्य है क्या असत्य है? सत्य है। डेफिनेशन को याद रखना, जैसे अभी कॉलेज में स्कूल में जो बैठे थे ना, ऐसे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो करके। तो ये डेफिनेशन क्या था? यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। जिस रूप से जिसको जाना वो रूप बदलना नहीं चाहिए। वो ज्ञान, रूप का अर्थ ज्ञान है। आपने इसको जैसा जाना वो कभी बदलना नहीं चाहिए, वो बदलने की कोई संभावना ही उसमें ना हो, तब आपका वो ज्ञान सत्ज्ञान होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैजिक देखिए, इंटरेस्टिंग चीज है। ये आपके सामने ब्रह्म के रूप में भी रहेगा, सत्य के रूप में भी रहेगा। सत्य यानी ब्रह्म, सत्य ब्रह्म है, और असत्य के रूप में भी रहेगा। ये दोनों का मिक्स है। ये सत्य भी है, असत्य भी। इधर मिथ्या शब्द का अर्थ भी आपको आ जाएगा, सब एक ही साथ हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आगे जो हम बताने जा रहे हैं इन प्रक्रिया क्या है कि इसमें जो अभी हम कह रहे हैं ये वस्त्र है। ठीक है, इसका नाम वस्त्र है। सभी लोग, पूरी दुनिया इसको वस्त्र कहते हैं। कोई क्लॉथ कहते हैं, किसको वस्त्र कहते हैं, बस कपड़ा कहते हैं हिंदी में। हाँ, बंगाली में भी वही कहते होंगे। हाँ ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं, ये इसका प्रकार। अब है कि ये जो कपड़ा है इसका वस्त्र रूप से हम देखेंगे ना, तो यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति, ये होना चाहिए इसमें। मतलब वस्त्र रूप से हमने इसको कहा, ये कपड़ा रूप से इसको माना, और वो वैसा ही हमारे जिंदगी भर वो ज्ञान ऐसा ही रहना चाहिए। इस ज्ञान को कोई काट नहीं होना चाहिए, कभी भी एक ज्ञान विचलित नहीं होना चाहिए। किंतु होता है, यदि आप टेक्सटाइल के बारे में जानते हैं, सामान्य भी ज्ञान है, तो आपका ये वस्त्र ज्ञान चला जाएगा। कैसे? ये वस्त्र जो अभी दिखाई दे रहे हैं ना, ये बना किससे? धागे से बना है ना, धागे से बनाया। तो अब आप जो है, मैंने कहा धागा, तो इसमें कुछ धागे भी दिखते हैं छोटे छोटे, जो दूर में तो दिखाई नहीं पड़ेगा, है थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो धागे भी हैं। अब आप इस वस्त्र को धागे के रूप में देख रहे हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? वस्त्र तो वैसे ही है, लेकिन अब वस्त्र को नहीं देख रहा है, वस्त्र नाम चला गया। अब आपकी दृष्टि कहां पड़ी? वो वस्त्र के अंदर जो धागा है उसमें पड़ी। अब आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये वस्त्र जो कह रहे तो वस्त्र कहने के लिए था, वस्तुतः ये धागा है, क्योंकि हम जानते हैं ये धागे से बना हुआ है।
आने बाने जो लगा हुआ है ये धागा है, दोनों तरफ से धागे को बांधते हैं, नहीं तो हम मशीन में जाके देखेंगे तो हमको पता चलेगा, हमने देखा भी है और कहीं आपके कॉलेज में कभी पढ़ते समय आप प्रैक्टिकली भी देखा होगा, आजकल स्कूल में भी दिखाते हैं। तो ये सारे जो है आपको पता है कि पक्का मालूम है कि ये धागा ही है इसमें। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि धागे को अलग कर दिया जाए, हमारा तर्क यही है, लॉजिक यही है कि यदि हम धागे को निकाल दें तो इसमें वस्त्र नहीं मिलेगा। अब वो वस्त्र कहां गया? वस्त्र कहां गया है? वस्त्र गया, वस्त्र अभी नहीं है, क्योंकि वस्त्र का जो रियल एक्सिस्टेंस है दैट बिकम धागा, एक्सिस्टेंस ऑफ धागा नहीं, एक्सिस्टेंस ही हो गया, वो धागा ही हो गया। तो वस्त्र धागा में मर्ज हो गया है। अब वस्त्र का अलग एक्सिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आप धागे को देख रहे हैं, धागा ही आपके ध्यान में है। तो अब पहले वाला ज्ञान चला गया कि नहीं? वो चला गया। हमारा डेफिनेशन क्या था? वो ज्ञान जाना नहीं चाहिए, यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति होना चाहिए था, किंतु अभी तो व्यभिचार हो गया, तुरंत एक क्षण में ही वो बदल के, वस्त्र बदल के धागे के रूप में आ गया। अब हमने यहां कोई इमेजिनेशन, कल्पना कुछ भी की है क्या? कुछ नहीं किया, वस्त्र तो वही का वही है। और वस्त्र के अंदर जो सत्य है, जो सत्य है, उसके जो रियलिटी है, उसके जो मटेरियल कॉज है, उस पर हमने ध्यान दिया, बस इतना ही। ये खाली हमारे मन में चल रहा है, मन से हमने उसमें ध्यान दिया, और जो कि रियल है। अब हमें समझना चाहिए था वस्त्र को धागे के रूप में, ठीक है। अब आप धागा हमारे मन में आ गया, ठीक है। कैसे होता है? अब देखिए, रियलिटी चेंज होता है। अब धागा मन में आने के बाद हम सोचते, अरे अभी आप सोच रहा ही होगा, अरे धागा तो बना हुआ कॉटन से बना हुआ, ये कॉटन का कपड़ा तो कॉटन से बना हुआ, अब धागा कहां का रियल है? तो धागा के वो रियलिटी जो है ना, वो धागा सीमिंगली रियल है, ये सो कॉल्ड रियलिटी उसका जो है वो बिकॉज ऑफ कॉटन। तो उसका बेस, उसका सत्य, उसका एक्सिस्टेंस, धागा का एक्सिस्टेंस कहां है? कॉटन में है, क्योंकि कॉटन के बिना धागा का अपने आप में कोई एक्सिस्टेंस प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप धागा से कॉटन को निकाल दिया, तो अब कॉटन कहां चला गया? नहीं, धागा कहां चला गया? कॉटन में लीन हो गया बोलना पड़ेगा। एक्चुअली वो धागा करके कोई चीज वहां था ही नहीं, और वस्त्र करके कोई तत्व अलग से था ही नहीं, जो कुछ था वो कॉटन ही था। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि कॉटन और वस्त्र, इन तीनों को रखते हैं, बीच में धागा भी है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है, इसका एक चेंज है, और भी कुछ हम जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, फिलहाल हम 3 ले लेंगे। तो अब कंपेयर करिए कि जब हम कॉटन को जान लिए कि हमें पता है कि कॉटन का जो पार्टिकल्स हैं यही इस वस्त्र का अस्तित्व है, इससे अलग नहीं है, तो अब कंपैरेटिवली इसका जो सत्यत्व है, जो रियल अस्तित्व है, रियलिटी है, वो द पार्टिकल्स ऑफ कॉटन में जाके रुक गया। और ये आपको समझ में आता है क्योंकि आपने साइंस पढ़ा है, आपने इसके वस्त्र कैसा बनता है ये आपको जनरली उसका नॉलेज आपको है, इसलिए आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब आप देखिए, आपके दिमाग में तो कॉटन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, तो अब आप उसको सत्य मानते हैं, वही सत्य है, क्योंकि आपको पता है कि कॉटन के पार्टिकल्स के बिना यह वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आपके मन में कोई दुविधा है क्या? नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि आप वस्त्र को देख रहे हैं, भले ही आप वस्त्र को देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में तत्व का ज्ञान चल रहा है, क्योंकि आप उसको जानते हैं, जानकारी है, खाली हमने कुछ किया नहीं, आपको केवल यहां से शिफ्ट करके आपके जानकारी को और गहराई तक लेके यहां से वहां कर दिया, बस इतना ही है। अब जो है, अब आप देखेंगे इन कंपैरिजन, अभी हम इन कंपैरिजन में चलेंगे, क्योंकि जब तक अल्टीमेट में नहीं पहुंचेगा तब तक इन कंपैरिजन में चलेगा। तो अब जो है, ये वस्त्र के अस्तित्व से ज्यादा जिसका अस्तित्व स्थिर है वो है कॉटन का अस्तित्व। कॉटन वस्त्र बनने के पहले भी था
और कॉटन के जितने भी क्वालिटी थे, उसके स्ट्रेंथ और उसके जो वेट हैं, वो उसका जो कलर है, जो भी कुछ उसका क्वालिटी था कॉटन का, पार्टिकल्स का, वही ये वस्त्र ले रखा है। अन्यथा वस्त्र के पास कुछ नहीं है, वस्त्र के पास निजी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है क्या है, वो कॉटन का ही है। सो नाउ व्हाट वी कैन से, दिस क्लॉथ इज इक्वल टू कॉटन, उसका सारे कुछ वही है। अब जब यही स्थिति है तो हमको वस्त्र को अलग एक एक्सिस्टेंस क्यों माने? माना जा सकता है क्या? मानना ठीक है क्या? ठीक नहीं है। तो जब वस्त्र को अलग एसिस्टेंस मानेंगे तो कॉटन पूछेगा कि मेरा एसिस्टेंस लेकर के तुम कैसे अपने को एसिस्टेंस बोल सकते हो? वो तो कॉटन का एसिस्टेंस है, दूसरे के एसिस्टेंस ऋण में लेके आप दूसरे को कैसे स्थापित कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए आप वस्त्र वस्त्र कहते रहो, वस्त्र का प्रयोग करते रहो, उससे आप कुर्ता बनाओ, जामा बनाओ, कुछ भी बना दो, सब कुछ करते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि मैं ही कॉटन के रूप में वहां हूं। यह है सत्य, यही ब्रह्म का स्वरूप है। जो ब्रह्म का सत और चित्त आनंद तीन लक्षण हैं, जो स्वरूप लक्षण कहते हैं, उनमें से सत का स्वरूप यही है। सत में ब्रह्म प्राणी भी बनता है और दूसरे जड़ पदार्थ भी बनता है। जो प्राण से युक्त है, जो प्राण से हीन है, सभी में सत है ना, एक्सिस्टेंस है। तो वो ब्रह्म का, आत्मा का स्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं। वो सत ही सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सत ही ब्रह्म है। उसका सच्चिदानंद का वो स्वरूप बता दिया। अब आप देखिए, मिथ्या शब्द सत्य शब्द का इसी में हम डिफाइन करेंगे। तो अब क्या हुआ कि ये जो वस्त्र जो था, जब कॉटन का ज्ञान आया अथवा धागे का ज्ञान आया, तब वस्त्र का ज्ञान अपने आप में अनरियल हो गया। आप अपने आप कहेंगे अरे ये तो रियल नहीं है, ये तो दूसरे का लेके दूसरे का बोल रहा। तो अपने आप अनरियल हो गया। अनरियल होने पर भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं, शब्द प्रयोग आप करते ही है, लेकिन अनरियल हो गया। आपके अंदर तो यह ज्ञान पक्का हो गया कि ये किसी भी प्रकार वस्त्र कॉटन से भिन्न है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई क्वालिटी नहीं, अपना कुछ भी वस्त्र का नहीं है। केवल हम वस्त्र को वस्त्र कहते हुए व्यवहार करते आ रहे थे और वो हमारे अभ्यास में बैठ गया, तो वस्त्र को वस्त्र कह रहे हैं। क्योंकि हम कॉटन कहेंगे वो जनरल टर्म हो जाता है, तो अलग अलग वस्तु को पहचानना मुश्किल होता है। तो फॉर द सेक ऑफ व्यवहार, मतलब फॉर द एम्पिरिकल व्यवहार, हम उसको नाम दे दिया बस। वो नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। इसी को मिथ्या कहते हैं। यानी अब जब आपने कॉटन को, द रियल कॉज को जान लिया, जानने के बाद ध्यान रखना, जब तक ज्ञान नहीं होता है आपके लिए वस्त्र रियल है, सीमिंगली रियल नहीं, एक्चुअल रियल है। अब सीमिंगली रियल तब होता है जब आप धागे को जान लेते हैं और धागे से बना हुआ वस्त्र है, यह धागे से भिन्न नहीं है, ऐसा मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं, तब आपको यह वस्त्र का रूप भाव सीमिंगली रियल होता है। फॉर द सेक ऑफ हमारा व्यवहार के लिए हो जाता है। और इससे भी यदि आप गहराई में जाएंगे तो जब कॉटन को आपने जान लिया, कॉटन व्यापक है। जो कॉटन शब्द का प्रयोग इसमें भी आप जितने भी पहने हुए हैं सारे वस्त्र में कॉटन का प्रयोग हो सकता है। कुर्ता भी कॉटन है, धोती भी कॉटन है, सब कॉटन है, सब कॉटन के नाम से ही जाना जाएगा। अब उसमें क्या है, व्यवहार में हमें दिक्कत पड़ेगा। अब आप दुकान में जाके दुकानदार को बोलेंगे मुझे एक कॉटन दीजिए, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आपको वहां जाके साड़ी नाम बोलना पड़ेगा, तो कपड़े का नाम बोलना पड़ेगा, तब वो समझेगा। वो बोलेगा कॉटन बोलता है, ये तो पागल है, ये तो जानता नहीं,
कॉटन यहां नहीं मिलता, दूसरे दुकान में मिलता है। बोले वो बेचारा पूरा उनके दुकान में सारे जो है सारे कॉटन ही भरा हुआ है। वो बोलता है आप कॉटन पूछेंगे बोलेगा दूसरे दुकान में, यहां नहीं मिलता है, वो तो दूसरे दुकान में आपको तौल के मिलेगा वहां कॉटन। ये तो कॉटन नहीं बेचते हम यहाँ कॉटन नहीं बेचते। क्या बेच रहे हैं हम? साड़ी, कमीज इत्यादि बेचते हैं, तो ये हमारे दुकान में मिलती है, कॉटन तो दूसरी जगह मिलती है। आप देखेंगे ये वो सोचते हैं आप पागल है और आप सोचेंगे ये पागल है। वो सारा कॉटन का भरा हुआ, लेकिन वो कॉटन को मानता ही नहीं है, जानता ही नहीं। उसके ध्यान पूरा उसके वस्त्र के आकार, नाम, रूप, रंग में है, पूरा अटैच्ड है, वही उसका जीवन है। इसीलिए आप यदि आर्ग्यू भी करने जाएं तो भी वो मानने को तैयार नहीं होते। ये कॉटन यहां नहीं मिलता है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, आप दूसरी जगह जाइए करके वो जबरदस्ती बोलेगा, ना वो स्वीकार करेगा ना आप उसको छोड़ सकते। ये रियलिटी होता है। इसीलिए लोगों की दृष्टि में जो ज्ञानी की स्थिति होती है ना, लोगों की दृष्टि में ज्ञानी पागल होता है। यह आपने सुना होगा ठाकुर जी के जीवन चरित्र में भी है। बहुत सारे जो संत हुए, अवधूत संत हुए हैं, जो सिद्ध पुरुष हुए, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, उनके दृष्टि में ये सारे या दिशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वहां भी भगवान ने यही कहने के प्रयत्न किया। तो उनके दृष्टि में तो ये सारे लोग पागल है, अरे ये क्या करने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये तो कोई सत्य है ही नहीं, ये आज मिलेगा कल जाने वाला, ये आज बदल दिया फिर बदल देंगे, और ज्ञान बदलते रहते हैं, फिर ये सब होता रहता है। यहाँ की उनकी कोई स्थिरता है ही नहीं, और स्थिरता के बिना आपको ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता, और सत और ज्ञान स्थिर हुए बिना आपको आनंद की स्थिरता नहीं हो सकती। आपने ये वस्त्र से यदि आनंद प्राप्त करने के प्रयत्न की तो ये अस्थाई रहेगी, क्योंकि जब आप वस्त्र को बदल दिए, वस्त्र के दूसरे रूप में जान लिए, अब हमने कॉटन तक रोक दिया, लेकिन कॉटन के पीछे आप जाइए, कॉटन के पार्टिकल्स के एटम्स के पीछे आप जाते जाइए, फिर एनर्जी में पहुंचेगा, अभी क्वांटम में पहुंचेगा, और उसके बाद अस्तित्व के रूप में आत्मा में ही पहुंचता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इतनी बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ये है सत्य। और जो वस्त्र रूप आप व्यवहार कर रहे हैं, ये कोई गलत नहीं है, व्यवहार के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्वदा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वस्त्र यथार्थ नहीं है, ये बदलेगा। इसलिए मिथ्या की व्याख्या क्या करते हैं? ज्ञान बाध्यत्वम मिथ्यात्वम। ज्ञान बाध्यत्वम यानी ज्ञान के द्वारा जो बाधित हो जाए, जिसको देख के आप बोलेंगे ना ये है ही नहीं, ऐसा बोलेंगे। अब हम पूछेंगे आप वस्त्र है, बोलेंगे ना नहीं ये कॉटन है। वस्त्र का ना लगेगा और कॉटन में हां लगेगा, और जगह है और हां बोला जाए वो हो गया सत्य। जिसको आप निराकरण कर दें वो हो जाएगी मिथ्या। इसलिए ज्ञान बाध्यत्व मिथ्यात्व, इतना ही मिथ्यात्व का लक्षण है। ज्ञान के द्वारा वो बाधित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल दिखाई देता है। रस्सी में सर्प भी दिखाई देता है, आकाश में बादल के गंधर्व नगर भी दिखाई देता है, मरुमरीचिका भी दिखाई देती है, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब भी दूसरे सूर्य के रूप में दिखाई देता है। सब कुछ दिखाई देगा, आपका शरीर भी दिखाई दे रहा है। अब आपके शरीर की यदि परीक्षा करें, अब इसके बाद वही करना है, आप जाकर के अपने शरीर की परीक्षा करिए, जैसा हमने ये वस्त्र की परीक्षा करके आपको बताया। यही फॉर्मूला लगा, यद रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम, यद रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरत अनृतम इत्युच्यते। अनृतम शब्द का अर्थ मिथ्या। इसके ही सही व्याख्या में ना लगा देना। जिस रूप से जिसको जाना गया उसका उस ज्ञान का परिवर्तन ना हो तो वो सत्य है। जिस रूप से जिसको जाना गया उसका ज्ञान का परिवर्तन हो, परिवर्तित हो, ज्ञान बदल जाए तो मिथ्या। अब ज्ञानी में अज्ञानी में क्या अंतर है? अब बताइए, ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। वेदांत की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। ज्ञानी भी वैसे ही रहता है,
बहुत सरल रहता है, वैसे ही खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, और ज्ञान होने के बाद में उसके सिर में कोई मुकुट तो नहीं आता है, कुछ फर्क नहीं होता, वैसे वैसे सरल दिखाई पड़ेगा, और बल्कि दूसरे से और सरल दिखाई पड़ेगा। और ज्ञानी के दृष्टि से कोई अज्ञानी नहीं होता है, ऐसे भी आश्चर्य है। ज्ञानी के दृष्टि से कोई अज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञानी अज्ञान को नहीं देखता है, अज्ञान उनको दिखाई नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति समझ लो इसमें एटम्स को देख रहे हैं, जो एटम्स के बारे में जानता है, साइंस पढ़ा फिजिक्स पढ़ा, तो वो जानता है कि ये तो ऐसे कुछ नहीं, एटम्स है। और जो क्वांटम फिजिक्स इत्यादि लेवल पर जानता है वो बोलता है ये तो एटम्स भी नहीं, क्वांटम है, क्वांटम के जो है अलग अलग रूप है। तो वो व्यक्ति यदि सामान्य कोई आदमी से बात करेगा, वो ऐसे कपड़ा हाथ में उठा के बोलेगा नहीं नहीं ये आटम है भाई, आटम। और आटम कैसा है वो दिखाई नहीं देता है, आटम को देखने के लिए एटॉमिक माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके बिना तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो आप सामान्य व्यक्ति को बोलेंगे देखो जो दिखाई नहीं पड़ता है ना आटम, वो उन आटम से ये बना हुआ है और ये दिखाई पड़ रहा है, वो बोलेगा तुम पागल है। अरे कैसा होता जो दिखाई नहीं देता है उससे जो बना हुआ कैसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन हो ऐसा रहा है। तो यही आश्चर्य है, जो अलग रूप में है वो अलग रूप में परिणत होने पर अलग रूप में उसकी सत्यता होती है, और उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें यह स्थापित करने के लिए साइंस पढ़ना पड़ेगा, जो साइंस नहीं पढ़ा वो तीनों काल में कभी स्वीकार नहीं करेगा कि यह एटम से बना हुआ है। ये इसीलिए हमारे जो फिजिक्स साइंस जो भी होता है ना, वो भी हम गांव वाले के साथ बात नहीं कर सकते, वो समझेगा ही नहीं। वो तो ज्यादा से ज्यादा समझेगा ये कॉटन से बना हुआ है, ये कपास से बना हुआ है, इतना तक तो समझ लेगा, उसके पीछे नहीं जाएगा। वो बोलता है इसके ये तो कबर क्या होता है, ऐसा होता है, आटम एटम क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो वो मना कर देते हैं। और पानी दिखा कर क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ ये तो क्या है, पानी है, और बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, हवा है, दो गैसेस है, और दो गैसेस से ये बना हुआ। वो तीनों काल में उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वहां तक उसकी बुद्धि गई नहीं है। आप जो है फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़े हैं, आप समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया है, ऐसा फॉर्मेशन है, ये ऐसा होता है, ये आप जानते हैं, आप स्वीकार किए हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं H2O बोलेंगे आप समझेंगे। ऐसे ही हम किसी को बोलेंगे ये सारा ब्रह्म है, ये ब्रह्ममय है, आत्ममय है, ज्ञानी ये घोषणा करते रहते हैं, अहमेव इदगुम सर्वम, अहम पुरस्ताद, अहम पश्चाद, अहम उत्तरदा, अहम दक्षिणदा, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, सभी के रूप में मैं ही भोजन कर रहा हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, सभी के रूप में मेरा अस्तित्व है, सभी के रूप में मेरा सुख है, सभी के रूप में मेरा सब कुछ है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरे अलावा कुछ अस्तित्व इधर नहीं है। ऐसा जब ज्ञानी उद्घोषणा करते हैं, ज्ञानी का अनुभव प्रकट करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, उनको समझने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सब बोलता है ये तो पागल है, क्योंकि ये समझता नहीं, ये कैसा हो सकता है। अब सबके द्वारा मैं ही भोजन कर रहा हूं बोलता है, फिर भी वो खाता है भूख लगने से, तो बोलता है ये झूठ है, धोखा दे रहा है, वो सबके द्वारा भोजन करना है तो फिर आप क्यों खा रहे हो। ऐसे ऐसी बुद्धि हमारी होती है। इसीलिए जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो दोनों का अंदर जब समझना चाहिए। इसी के जो है व्यापक दृष्टि से हम इसको माया शब्द कहते हैं। ईश्वर के सत्ता के रूप में, ईश्वर जो तत्व सृष्टि में है, जिससे ये पंचभूत सारे बने हुए हैं, इसका मटेरियल कॉस्ट रूप में माया को कहा गया। माया भी कोई इल्यूशन ऐसा नहीं है, कोई भ्रम ऐसा नहीं है, माया है शक्ति। मम माया दुरत्यया मायांतु प्रकृति विद्यात् मायुनम तु महेश्वरम। भगवत्पाद शंकराचार्य अपने भाष्य में जो माया के बारे में वर्णन करते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि माया जो है, भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने माया का प्रणयन किया, माया जो कंसेप्ट है ये शंकराचार्य जी का है। बिल्कुल नहीं है, शंकराचार्य जी का अपना कुछ भी नहीं। उन्होंने वेदांत में जो पहले से था उसका प्रकटीकरण किया है।
वेद में है माया शब्द का अनेकों बार प्रयोग है। यज्ञेन मायया, वो सब यजुर्वेद में है, ऐसे शब्द का प्रयोग है और उसके अर्थ शक्ति में ही लिया है और वो शक्ति ही हमारे यहां महामाया के रूप में शक्ति बनी। जब हम चंडी पाठ करते हैं उसमें जो माया, महामाया का जो आदि शक्ति का वर्णन होता है वो वही माया है। भगवान अपनी शक्ति के रूप में मम माया दुरत्यया, ये अपनी शक्ति के रूप में कहते हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद मायाम तो प्रकृति विद्या मायिनम तो महेश्वरम, ये माया की शक्ति का वर्णन वहां भी करते हैं। तो आचार्य जी ने उसको इस प्रकार प्रक्रिया के अंदर व्यवस्थित करके दिखाया कि ये सारी सृष्टि उसी के द्वारा है। तो अब क्या है कि इसमें माया क्या है कि ये रूप सारे आपको दिखाई देने के कारण इसका ओरिजिनल कॉज पर आपका ध्यान नहीं दे जाता है, यही माया है। इसलिए आपको ओरिजिनल का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इस पर आकर्षित है। जैसा मैंने दुकानदार की बात कही ना, उसको आप समझाओ कि आपके पास कॉटन ही कॉटन है, वो तो कभी नहीं स्वीकार करेगा, उसके माया है, क्योंकि उसको तो उसको धन आदि सब कुछ दिखाई पड़ता है। अरे ये तो इतने रंग बिरंगे, ये कॉटन कहां से हुआ? तो उसकी कॉटन जो बुद्धि है, कपास बुद्धि अन्यत्र है, इसमें कपास बुद्धि नहीं है, वो बाधित हो चुकी है। इसलिए ये उसको हम अज्ञान कहते हैं, अंधकार कहते हैं, माया की शक्ति कहते हैं। इसलिए ये महामाया जो शक्ति है ये ब्रह्म के प्रकटीकरण के लिए कारण बनी है और वो अलग अलग रूप में आप दिखाते हैं। अब वो एक ही मृत्तिका से कितने कितने रूप बनते हैं और उसका अलग अलग नाम रूप होता है। तो ये सब कुछ होते हैं, ये पंचभूतों की ये स्थिति है। इस प्रकार हमने प्रयत्न किया, समय हो गया, तो क्या सत्य है और क्या मिथ्या है इसको सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न किया। इस पर आप चिंतन करिए। यदि आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो सारे वेदांत का सारी जितनी प्रक्रिया है ये सब सरल से समझ में आएगा। ये सब कॉज एंड इफेक्ट थियरी पर ही सब कुछ व्यवस्थित है। कार्य और कारण, ये कपड़ा कार्य कहते हैं और इसके जो है कपास आदि कॉटन आदि को कारण कहते हैं। अब वो किस तल पर आप ले जाते हैं, पीछे 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 जाइए, साइंस तो वहां तक जाए, उसके बाद आप आध्यात्मिक शास्त्र में उपनिषद में प्रवेश करेंगे तो सच्चिदानंद ब्रह्मा उसका कारण रूप से पर्यवसित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो भी आगे का जवाब बताएंगे। सभी को धन्यवाद, आपने बहुत सावधानी से सुना। यह बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग विषय है, कई दिन तक हम इस पर चर्चा व्याख्या कर सकते हैं। आप लोग चिंतन करिए, आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं तो आप बहुत और प्रकार से भी इसको विचार कर सकते हैं। हरि ओम नारायण। थैंक यू। श्री गुरुभ्यो नमः।